population. Now, when we say the word population, means जनसंख्या, हम हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या. And what is the meaning of population? Means the total number of people living in any area comes under population. मतलब population of, say you are living in Dilshad Garden, तो population of Dilshad Garden, population of Shahadra. तो हम लोग कैसे करते हैं? First of all we take the what we call as the regional level. हमारा जो region होता है उसको लेते हैं. Then we go to the state level and then we go to the country level, and it is the total number of people living in any vicinity. कहीं पर भी रहने वाले सबका जो टोटल होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन में लेकर आते हैं, which will comprise of everyone. Now the next question comes is कि why do we need population? Now the question is कि why do we study? हम population को क्यों study करते हैं? तो this is because the quality of life, the quality of education, the kind of population is the benchmark for the development of a country. अगर हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर चलते हैं तो वहां किस तरीके के लोग हैं, then whether they are working, whether they are non-working, whether they are educated, whether they are not educated, ये सब कुछ आपका जो है that tells about that how, मतलब कि what kind of country is it. Now let me give you one example. If you go to the areas of Bangkok and all, मतलब आप अगर साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं वहां आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो छोटी छोटी सी जगहें भी है, मींस रेस्टोरेंट्स बोल लो या फिर स्मॉल शॉप्स बोल लो, दे यू विल सी दैट women आर मोर इनटू, इवन वहां ड्राइवर्स भी women ड्राइवर आर देयर. तो इससे क्या पता लगता है कि वहां के जो लोग हैं दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, लेकिन दे आर ऑल वर्किंग, दे आर ऑल लेबोरियस, they are onto skilled labor. तो इससे ये पता लगता है कि उस कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो. एंड इफ यू गो टू फ्रांस, मतलब आप यूरोप की तरफ चले जाओ, एंड व्हाई आई टेल यूरोप में फ्रांस, क्योंकि फ्रांस का जो है एलिट क्लास बोला जाता है. So if you go to France, you will find people more educated. तो this is the difference. and हम ये देखते हैं कि वहां पर कितना पॉपुलेशन है, द गवर्नमेंट जो है किस चीज को किस चीज पर वो ध्यान करती है, इस चीज के लिए we have to study. Now, how do we know how much population is there in a place? हम कैसे काउंट करते हैं? अब आपके घर में हो सकता है 3 जने हो, मेरे घर में 4 हैं, दूसरे के घर में 5 है. Okay, in a building we can count it 1 2 3 4 5 6, but how can we count for an entire society, for an entire place, for an entire country? और उसके लिए हमारे पास जो है we have what we call as census. और आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन होता है कि what is census. तो it is the official remuneration, it is the official enumeration. Enumeration का मतलब होता है, enumerate का मतलब होता है counting. It is the official enumeration and it started in 1872. आपका जो है ये start हुआ था, पहला जो है वो 1872 में start हुआ था, but खत्म हुआ था हमारा 1881 में. This comes in the paper. This मतलब कि ये जो हुआ था that was in 1881. And what does it come कि एक एरिया में कितना पॉपुलेशन है, then what is the growth of population, and then what are the characteristics or qualities of population. यानी कि जो आपका सेंसस है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, that provides the population size, आपका बताता है कि कितना है, then what is the growth,
एंड देन व्हाट इज द क्वालिटी, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं और इसी से हम लोग जो है मतलब कि वी कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर कंट्री और नॉट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम इज दैट कि अभी मतलब आप लोग तो बहुत लकी हो, 2 days before there was a news, I think you must have, all of you must have seen that India has surpassed China and now our population is 1.42 billion. हमारा जो पॉपुलेशन है वो है 1.42 बिलियन. एंड इसका मतलब, एंड वी हैव ऑलरेडी सरपास चाइना, जबकि ये जो है हमारा होना था आज से 5 साल बाद, बट वी हैव ऑलरेडी डन. और इसका रीजन जो उन्होंने बताया है वो ये बताया है कि इन चाइना 2019 के बाद जो आपका कोविड आया था उसमें उनके काफी पॉपुलेशन जो है वो पेरिश हुआ था. एंड जो नंबर ऑफ मतलब उनके जो अपने दे हैव देयर ओन पॉलिसीज, पहले उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी था, राइट नाउ नहीं है, पहले था. इन सब की वजह से दे हैड कंट्रोल टू सम एक्सटेंट, बट इन इंडिया वी डोंट हैव सच पॉलिसीज एंड राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1.42 बिलियन. कैन यू इमेजिन कि हमारा पॉपुलेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओल्ड वन, अगर हम 2001 का देते हैं तो हम वर्ल्ड के 16.7% से भी ज्यादा है. एंड हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन द टोटल सम ऑफ, अगर हम लोग देखें तो टोटल सम हमारा जो है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूएस, यूके, साउथ अमेरिका, इन सबको लेकर हमारा जो है टोटल पॉपुलेशन बनता है. you can just imagine what is the position of our population. नाउ इफ यू से कि कौन से स्टेट्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो यूपी, देन महाराष्ट्र, देन आपका आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार. These are the 5 states which are the most populated states in our country. And if we say UP is the most and Sikkim जो है it is the least populated state. सिक्किम जो है वो आपका लीस्ट पॉपुलेटेड है. तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि व्हाई सम ऑफ द सिटी, सम ऑफ द स्टेट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड सम ऑफ देम आर लीस्ट पॉपुलेटेड. ऐसा क्यों है? व्हाई? तो द रीजन इज कि किसी भी एरिया के अंदर हाउ डू वी कैलकुलेट, इज वी कैलकुलेट दैट एक प्लेस है, एक प्लेस में 1 स्क्वायर किलोमीटर के दरमियान, ओवर एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर किलोमीटर, हाउ मेनी पीपल लिव एंड हाउ डू दे लिव, व्हाई डू दे लिव? Because there will be, you will be having the shops, you will be having the facilities, you will be having the roads, you will be having other things. तो तब वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं. एंड उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यूपी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, व्हाइल इफ वी सी आपका सिक्किम जो है इट इज द लीस्ट पॉपुलेटेड. एंड दिस इज बिकॉज आपका अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम जो है इट इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स एंड इट इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट, जहां पे आपके रोड्स अभी भी बिछे नहीं है. वहां का जो वेदर होता है दैट इज नॉट दैट मच सूटेबल, और इसकी वजह से क्या है कि वहां का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है. दैट इज द रीजन. एंड इफ यू गो टू केरला, if you go to Gujarat, if you go to any other place जहां पे आपका पानी भी है, जहां पर आपके रोड्स भी है, वहां पर you will find more people. Whereas if you go to the areas like आप अगर डेजर्ट में चले जाओ या फिर आप बिल्कुल ऊंचाई पे हिल पे चले जाओ, लाइक अभी लाहौल स्पीति वगैरह में भी अभी टूरिज्म है तो पीपल आर गोइंग ओवर देयर, बट अगर हम वहां के पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो दे आर वेरी लेस. एंड दिस इज बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन अ हायर एल्टीट्यूड. आपकी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, देयर यू डोंट हैव द रोड फैसिलिटीज, देयर यू डोंट हैव द फार्मिंग फैसिलिटीज, वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसीलिए दोज एरियाज आर लीस्ट पॉपुलेटेड. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज हाउ डू यू कैलकुलेट कि किसी एरिया में पॉपुलेशन ग्रो हुआ है या फिर आपका कम हुआ है. And for this, we take 2 values. One is the absolute value and the second one is the
हम लोग लेते हैं, दैट इज अ परसेंटेज. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9. ये आपका आता है एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट का मतलब होता है, मान लो इस साल 2022 में, ठीक है, एक एरिया में 1000 लोग रहते थे इन 2021, बट इन 2022 जब काउंट हुआ तो देयर वर 1500 पीपल. उसी एरिया में, उसी जगह पर 1500 थी. तो हाउ मेनी पीपल हैव इंक्रीज? तो हम 1500 माइनस 1000 को करते हैं, यानी कि 500 पीपल जो है वो ज्यादा हो गए हैं. दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट. जब हम पिछले मतलब कि जो न्यू है उसमें से पुराने को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट. व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द लास्ट फिगर फ्रॉम द करंट फिगर. वेरस अगर हम इसी चीज को एक साल में परसेंटेज में बताना चाहते हैं, इफ वी वांट टू टेल व्हाट इज अ परसेंटेज, तो देन we would be say, अगर मान लो 500 people हैं तो 500 upon 1500 into 1. तो हम ये निकालते हैं with the percentage which is called as the second one, that is percentage. एवरेज हम मतलब निकाल के देते हैं, एक साल में कितने परसेंट बढ़ गए, कितने परसेंट बढ़ गए. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट हाउ मेनी पीपल हैव इंक्रीज्ड. एंड वी टेक, अब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एनुअल ग्रोथ रेट. यानी कि एक एरिया में हम लोग देखते हैं कितने बढ़ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, एंड देन वी फाइंड आउट द एवरेज. एंड हम कहते हैं एवरेज हमारे यहाँ पर जो एनुअल ग्रोथ है वो 5% है, 10% है, 15% है. So when we are calculating it in the terms of percentage, we call it in the annual growth rate. And अगर हम उसको डिटेक्ट करके निकालते हैं तो वो absolute होता है. So this is how the percentage or the population growth is calculated. Now comes कि how do population change. मतलब अगर हम कहते हैं ग्रोथ है या फिर हम कहते हैं कि डिक्लाइन हुआ है, तो कैसे डिक्लाइन होते हैं, किस वजह से डिक्लाइन होते हैं. Process of population change comes in your paper for 3 marks and you have to write all the points. आपके 3 points और तीनों लिखने हैं. You may be having a question in MCQ, you may be having a question of 2 marks, you may be having a question of 3 marks, or you may be having a question of 4 marks which will be the paragraph based or 5 marks. तो ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 दोनों में से आ सकता है. तो कैसे पॉपुलेशन चेंज होता है, किस वजह से चेंज होता है, तो वो होता है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन चेंज ऑफ अ प्लेसेस, अगर बर्थ होगा तो ऐड होंगे, डेथ होगा तो डिडक्ट होंगे, एंड लोग अगर माइग्रेट होते एक जगह से तो वो मतलब कि प्लस या माइनस होते. तो नाउ आपके पेपर में आ सकता है व्हाट इज बर्थ रेट, मतलब हाउ डू वी कैलकुलेट बर्थ रेट, क्या होता है. तो बर्थ रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ. लाइव मतलब जो जिंदा रहते, क्योंकि बच्चे जब बच्चे पैदा होते हैं तो देर आर मेनी इंसिडेंट्स व्हेन दे डाई बिफोर दे कम इनटू दिस वर्ल्ड ड्यू टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस, ड्यू टू मेनी कॉम्प्लिकेशंस. तो टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 लोगों के मतलब की संख्या में कितने बच्चे पैदा हुए, उसको हम बर्थ रेट कहते हैं. एंड डेथ रेट होता है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इन अ ईयर. तो अगर हमारा बर्थ रेट ज्यादा है, मतलब ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो जाएगा. अगर हमारे डेथ रेट है तो वो डिक्रीज हो जाए. मान लो कि एक एरिया है, वहां पर इस साल 1000 लोग थे और 25 बच्चे पैदा हुए, तो वहां पर अब कितनी पॉपुलेशन हो गई, 1025. लेकिन मान लो उस जगह पर 1000 लोग थे, 25 बच्चे पैदा हुए एंड 5 बड़े लोग थे जिनकी डेथ हो गई.
तो 1025 लोग थे, उसमें से 5 लोगों की डेथ हो गई, तो वहां पर 1020 लोग रहते हैं. So this way we try to find out how does the population change. अब आपका आता है माइग्रेशन. माइग्रेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. देर आर टू काइंड्स ऑफ माइग्रेशन. वन इज इंटरनल माइग्रेशन एंड दूसरा है एक्सटर्नल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इंटरनल का मतलब होता है जब लोग वन स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं फॉर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट. उनको अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता. हम में से आधे लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो दिल्ली में इसीलिए आए थे क्योंकि जिस जगह वो रहते थे वहां उनको फार्मिंग में फायदा नहीं मिला था. किसी ने बोला दिल्ली में आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, वो यहाँ आ गए. दैट इज आपका इंटरनल. एंड एक्सटर्नल होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल यानी कि एमिग्रेशन बोलते हैं. वी कॉल इट एज एमिग्रेशन, यानी कि अपनी कंट्री को छोड़कर चले जाना. अब अगर इंटरनल माइग्रेशन होता है तो पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होता. देयर इज नो चेंज इफ देयर इज इंटरनल माइग्रेशन. और ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है. व्हाई? अब मान लो कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, ठीक है. आज मैं दिल्ली में हूँ, मुझे नौकरी मिल गई, नहीं मतलब मुझे नहीं मिलेगी लेकिन मुझे जस्ट बता दूं, मुझे नौकरी मिल गई एंड आई मूव टू से चंडीगढ़. तो अब मैं मतलब कि इंडिया के पॉपुलेशन में मुझे काउंट किया जाएगा. मैं दिल्ली में रहूं या चंडीगढ़ में हूं तो मैं इंडियन ही. सो देयर इज नो चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ. सिर्फ मेरा नाम दिल्ली के इलेक्टोरल रोल में कट के चंडीगढ़ में चढ़ जाएगा बस. लेकिन इंडिया के पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं आता. लेकिन मान लो मैं आज दिल्ली में हूं एंड कल को मैं जो हूं आई शिफ्टेड टू शिकागो, तो डेफिनेटली देयर विल बी पॉपुलेशन चेंज because now I'm not part of my country, I'm part of some other country. So जो external migration होता है it affects the population count. जो internal migration होता है it does not affect the population count. ये पेपर में आपके आया भी हुआ है and it can also come class 9. So what is the process of population change? Population change का आपका जो है main है birth rate, that is number of people added, यानी कि the number of children live birth per 1,000 in a year. Death rate, the number of people who died per 1,000 in a year. Migration means moving from one place to another because of opportunities, employment or another. Now क्यों migrate करते? Now the question comes, why do people migrate? लोग migrate क्यों करते हैं? And this can be a 2-marker question. This is because we have the push and pull factors. We have the push and pull factors. Push factor होता है lack of opportunities. जब आपको अपनी जगह पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो आप दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हो. लाइक से अगर आप लोग आज से 10 साल बाद आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपको दिल्ली में जॉब नहीं मिली, आपको कोलकाता जॉब मिल गया तो आप कोलकाता चले जाओगे. हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल लेबर्स होते हैं, इफ दे डोंट गेट दी जॉब इन देयर ओन एरिया तो वो लोग फिर वहां से माइग्रेट होकर जो पास के शहर होते हैं वहां आ जाते हैं. सो पुश इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, वो उनको धक्का देती है, पुश करती है टू मूव आउट. एंड पुल फैक्टर होता है आपका अपॉर्चुनिटीज, लाइक आपके जॉब, देन आपका एजुकेशन, देन आपका हेल्थ. ये आपके पुल फैक्टर्स होते हैं. मींस ये हमें अट्रैक्ट करते हैं. अब मान लो आपको जो है से यू हैव गॉट अ
चांस, आपको जो है चांस मिल रहा है, यू कैन गो टू एनी प्लेस यू वांट। आप किस जगह पर जाओगे? जहां आपको जॉब भी अच्छी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, रहने के लिए जगह मिल रही है, वहां का एनवायरमेंट अच्छा है, वहां पर एजुकेशन अच्छा है, वहां पर हेल्थ अच्छा है। सो दीज आर द पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर होता है लॉस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पुल होता है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एज। अब हमने पहला पढ़ा था बेटा, हमने यहाँ पढ़ा था कि सेंसस में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन साइज। तो इंडिया का साइज है इस वक्त 1.42 बिलियन। फिर हमने पढ़ा था, सेकेंड हमने पढ़ा था ग्रोथ, और ग्रोथ के अंदर हमने पढ़ा था वी ग्रो को हम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर परसेंटेज में निकालते हैं। एंड ग्रोथ होती है आपकी, ग्रोथ या डिक्लेन होता है ड्यू टू बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, वो डिपेंड करता है किस एज के लोग किसी जगह पर रहते हैं, या राइट, किस एज के लोग जो है वो कहीं पर रहते हैं। वाई हम एज को देख रहे हैं? अभी फिलहाल मतलब इस वक्त 2023 में इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एज पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग। जब वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है ना तो हमारा रेवेन्यू बढ़ता है क्योंकि लोग नौकरी करते हैं। लेकिन अगर खाने वाला पॉपुलेशन ज्यादा होगा और कमाने वाले कम होंगे तो हमारा इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। तो हम कहते हैं अबाउट 14 ईयर्स, अगर कोई भी इंसान 14 बच्चा जो है वो 14 ईयर्स अबाउ है। Why 14 years हम कहते हैं? Because in India there are many states, there are many places जहां पर आपका जो है the people जो है they are not able to afford education। तो माना जाता है कि जो लोग 15 साल के अबाव है उनको जो है नौकरी दे सकते हैं। तो चिल्ड्रन हम मानते हैं बिलो 14 इयर्स, वर्किंग पॉपुलेशन हम मानते हैं 15 to 59 इयर्स, एंड अबाव 59 हम मानते हैं अडल्ट पॉपुलेशन यानी कि एजड। इन एनी कंट्री अगर ये वाला जो 15 to 59 है ये ज्यादा होता है तो उस कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। दिस इज व्हाई, बिकॉज ये जो 14 इयर्स के पहले होते हैं वी हैव टू प्रोवाइड देम विद फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन सब देना पड़ता है। सिमिलरली दोज हु आर 59 इयर्स एंड अबव यानी कि जो लोग थोड़े से एजड होते हैं they also have to be taken care of। ऐसा नहीं है कि वो लोग जो है they don't मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि they don't work। there are people who are working। in fact I was watching the movie yesterday ऊंचाई, कल नहीं मतलब परसों और कल मैंने हाफ ऑफ करके देखा था। so I was literally मतलब कि I was mesmerized by that movie। मतलब मैं तो इतना उससे इंस्पायर हुई because that story revolves around 3 people who are already 70 plus and they have planned to go to Mount Everest का base camp जाना चाहते हैं। and उसमें कई चीजें बहुत realistic थी, like the person who was playing the character of Amitabh Bachchan, Amit, he was मतलब वो आजकल वो होता है ना हम लोग इंस्टा पर अपने रील्स अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं बट रियल में वी आर नॉट लाइक दैट। फिल्टर लगा के अपनी फोटो तो लगा लेते हैं बट वी आर एक्चुअली नॉट लाइक दैट। एंड अदर जो बाकी दोनों होते हैं तो दे आर ऑल्सो वर्किंग। ऑल अवर फिल्म एक्टर्स जितने भी हमारे हैं, आई थिंक सलमान इज ऑल्सो अराउंड 60, शाहरुख इज देयर, अनिल कपूर इज 62 63, अनुपम खेर इज 62 63, बट दे आर वर्किंग। इट इज नॉट दैट वी डोंट वर्क, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो एक उन्होंने बना रखा है that a person who is 59 years and above is considered adult। हमारे अब्दुल कलाम जी became the president of India at the age of 71। Dr. Abdul Kalam became the president of India at the age of 71। but that doesn't mean that, but no, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, एलिंग हो जाते हैं, मतलब कि इसीलिए इनको हम मानते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। एंड 59 इयर्स अबव को हम एजेड मानते हैं एंड 14 इयर्स से जो छोटे 15 से छोटे होते हैं उनको हम बच्चा मानते हैं।
तो दिस इज द क्वालिटी. अगर एज कॉम्पोजिशन अच्छी होगी तो डेवलपमेंट आपकी अच्छी होगी. नेक्स्ट हमारा आता है द जेंडर और सेक्स रेशियो, यानी कि पर 1000 how many males and how many females, how many males and how many females. And this is one of the very poorest area जहां इंडिया में बहुत ज्यादा फर्क है. There are places like आपका हरियाणा, दिल्ली, ये एरियाज ऐसी हैं. आपका एग्जाम्पल में आता है, दीज आर द एरियाज जहां पर आपके अगर मतलब कि इफ वी से कि 1000 बॉयज हैं तो गर्ल्स की जो तादाद है वो 800 के करीब है. वेयर इज केरला यू हैव इक्वल, मतलब अगर 1000 है तो 1000 है या फिर एक ज्यादा ही है. पौंडीचेरी आपका 1000 है तो 1001 ऐसे है. बट दिस इज द जेंडर डिफरेंस. अब जेंडर डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. इन आवर कंट्री वी बिलीव दैट मेन हैव मोर पावर एंड दैट इज व्हाई दे आर अलाउड टू गो फॉर द आउटसाइड वर्क. वेयर इज अगर जो गर्ल्स होती हैं उनको हम लोग जो है बिफोर दे आर बॉर्न वी नॉर्मली किल देम इन द वॉर्म. हम उनको पेट में ही मार देते हैं, विच वी कॉल एज infanticide, which is wrong. The next is literacy level. Now literacy level का मतलब होता है how many people are literate. Now आपके पेपर में क्वेश्चन आता what is the meaning of literate. तो literate का मीनिंग है any person above 7 years who can read and write any one language with understanding. कोई भी एक इंसान जो 7 साल से बड़ा हो और कोई भी एक लैंग्वेज को वो जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ लिख सकता है, उसको हम जो है लिटरेट कहते हैं. अगेन हमारे यहाँ पर इफ वी सी तो देन हमारा जो है मेन ओवरऑल जो लिटरेसी है वो हमारा है अराउंड 73% ओवरऑल. लेकिन अगर हमें मतलब अगर हमारे यहाँ 1.48 बिलियन पीपल है तो उसमें से 70% पॉपुलेशन आर लिटरेट. वेयरएस अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स का देखते हैं तो बॉयज का अराउंड आपका 70% आपके बॉयज जो है दे आर लिटरेट, वेयरएस गर्ल्स में आपका अराउंड 55% आता है. फीमेल लिटरेसी इज स्टिल अ वेरी बिग क्वेश्चन इन अवर कंट्री. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एज कॉम्पोजिशन, भाई अगर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कमाएंगे तो नेचुरल है कि मतलब कि अगर दोनों अच्छे से कमाते हैं, both of them are doctors, both of them are engineers, both of them are lawyers, and if they are earning well, that would add to the GDP of our country. लेकिन अगर एक लड़की पढ़ने लिखने के बाद if she is asked to sit in the या फिर she is not given the एजुकेशन फैसिलिटी, हमारे यहाँ माना जाता है गर्ल्स को पढ़ना नहीं चाहिए, बॉयज को ज्यादा पढ़ना चाहिए. तो इससे क्या होता है, लिटरेसी मतलब कि जो गर्ल्स होती हैं उनको नौकरी कम मिलती है. नौकरी मिलती है तो उनकी जो सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है. तो दिस इज ओवरऑल हमारा जो क्वालिटी है पॉपुलेशन का वो खत्म हो जाता है. लाइक इफ वी सी द मतलब कि अगर हम देखते हैं तो पीपल आर वर्किंग इन various structure, and if you look for the girls you will find them either as teachers, and हमारे यहाँ तो बहुत मतलब कि खुशी की बात है कि टीचर तो कोई भी बन जाता है, anyone is a teacher, मतलब it's not. then there are certain places जहाँ गर्ल्स को काम करने के लिए अलाउ किया जाता है. there are so many areas जहाँ गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता. भाई गर्ल्स को अलाउ करने से फायदा ये होता है कि द एंटायर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री टेक्स प्लेस. द नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि वेयर डू पीपल वर्क. हमने कहा कि लड़कियां काम करती हैं, लड़के काम करते हैं, तो वेयर डू दे वर्क. तो वी हैव 3 सेक्टर्स व्हिच वी कॉल एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी.
प्राइमरी सेक्टर जो है दैट कंप्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, हस्बेंड्री, मतलब इन सब जगहों पर जो है प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, जहां पर आप नेचर के साथ काम करते हैं। वेयर सेकेंडरी आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि फैक्ट्रीज, जहां पर लोग एज वर्कर, वर्कमैन, सुपरवाइजर, मतलब ऐसी जगहों पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आपका टेरिशरी, और टेरिशरी सेक्टर आपका कौन सा है? आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, टीचर्स, लॉयर्स, ये सब आपके टेरिशरी। इफ आप लोगों के 10th में है, अभी नहीं है, अगर हम किसी भी कंट्री का जीडीपी को देखते हैं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि इन तीनों सेक्टर के जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, उसको बेचने से हमें कितना पैसा मिला। तो हमें सबसे ज्यादा मिलता है हमारे यहाँ पर टेरिशरी से, जो सबसे ज्यादा, वेयर सबसे कम मिलता हमें प्राइमरी से। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें कि लोग करते हैं, तो मैक्सिमम लोग प्राइमरी में काम करते हैं एंड टेरिशरी में कम लोग काम करते हैं। अगर लोग टेरिशरी में ज्यादा काम करें इन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचर्स, लॉयर्स, देन हमारा जो ओवरऑल इनकम है वो बढ़ जाएगा। प्राइमरी इज लेबर ओरिएंटेड और यहाँ पे वेजेस आपके कम होते हैं, whereas tertiary आपका जो है it is technology oriented and you get more income. But in our country it is completely मतलब कि ironical that primary sector has the maximum employment and minimum आपका GDP, whereas tertiary has the maximum GDP and आपका minimum employment. Secondary it's नॉर्मल, क्योंकि सेकेंडरी आपका प्राइमरी और टेरिशरी दोनों को हेल्प करता है। आपके जितने भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट आता है उसको हम फैक्ट्री में तब्दील करते हैं इनटू समथिंग एल्स, वेयरएज टेरिशरी हेल्प करता है इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इसीलिए वी नीड मोर पीपल इन टेरिशरी सेक्टर। तो अगर हम किसी कंट्री का अगर हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट क्या है, अगर हम उस पॉपुलेशन की क्वालिटी को पढ़ते हैं, and if that people are working in tertiary sector, they are educated, क्योंकि tertiary sector में you need educated people, टीचर बनना, बैंक में जाना, इंश्योरेंस में जाना, किसी में भी जाना, you need more, so you need to develop your education as well as your what you call as health sector. Now जब हम लोगों ने यहाँ पढ़ा लिटरेसी रेट, तो हमारे साथ में आता नेक्स्ट हेल्थ। Why do we study health as a part of population? If we take the data of around 1960s, in many of the countries, India was called as a land of tuberculosis. हमारे यहाँ पर ऐसे बड़े सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस थे which did not have any, उस वक्त में we did not have उसके लिए any cure, like polio, tuberculosis, then ऐसे। but then जब आपके vaccinations आए, तो now India is 100% polio pulse, मतलब कि polio free, tuberculosis free। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हेल्दी पर्सन होगा तो हेल्दी पर्सन इज एन एसेट। जो हेल्दी पर्सन है वो एसेट है। एसेट का मतलब क्या होता है? वो कंट्री के लिए फायदेमंद है। एन अनहेल्दी पर्सन विल बिकम एन अ लायबिलिटी। सोचो कि एक इंसान बीमार है तो वो इंसान क्या कमाएगा? जैसे हमने वो उसमें पढ़ा था इन अवर इकोनॉमिक, सकल एंड विलास की कहानी। So if a person is uneducated, if a person is unhealthy, he would not be adding, उल्टा वो जो है burden बन जाएगा। Whereas एक healthy person जो है वो कमाएगा भी,
and he would add to the GDP, and that is why we need health also. और health के लिए हम क्या लेते हैं? We take the birth rate, तो हम लोग already ले चुके हैं. हम लेते हैं infant mortality rate भी लेते हैं इसके अंदर. Birth rate हम इसमें लेते हैं birth rate, death rate, IMR. IMR is infant mortality rate या ratio. Birth rate we have already done. The number of live births in a year in per 1,000. Birth rate अगर live birth नहीं है तो इसका मतलब क्या है? Health facilities नहीं है. Then death rate plus IMR. Now what is IMR? IMR का मतलब होता है infant mortality rate, यानी कि the number of children who die, जिनकी डेथ हो जाती है बिफोर 1 ईयर, मतलब 1 साल से पहले, उसको हम IMR बोलते हैं. एंड दिस इज क्यों ऐसा होता है? व्हाई चिल्ड्रन डाई? बिकॉज लैक ऑफ फूड, न्यूट्रिशन. मदर को अगर न्यूट्रिशन नहीं मिला, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला, कम्युनिकेबल डिजीजेस, एंड थर्ड इज वैक्सीनेशन. ये 3 वजह होती है. अगर मदर को मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला था तो हो सकता है कि बच्चा कमजोर पैदा हुआ और वो थोड़े टाइम बाद उसकी डेथ हो गई. सेकेंडली हो सकता है कि बच्चा जो है मतलब कि बच्चे को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है. और तीसरा है बच्चे को जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं उनसे उसको वैक्सीनेशन नहीं मिला. Right now, Indian government is providing free vaccination to all the pregnant women so that the children are born and they don't die before the age of 1 year. Government is trying to. Next हमारा आता है the last but not the least is हमारे यहाँ पर जो national population policy. जो national population policy है, this is a policy which is aiming at the adolescents and उनके प्रॉब्लम को. As I said, हमारे यहाँ पर बहुत सारे गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को एजुकेशन एंड हेल्थ ये दोनों नहीं मिलते ड्यू टू वेरियस हिस्टोरिक रीजंस. ओके, मतलब कि पहले तो दूरदर्शन में ऐसे ऐड भी आते थे, अब तो आजकल नहीं आता ऐसा ऐड, लेकिन पहले आते थे. एक लड़का है, एक लड़की है, मदर कहेंगी तुझे खाना खाने की क्या जरूरत है, तू बैठ जा भैया को दे दे. नाउ अ गर्ल हु इज 13 to 16 years, उसकी भी जो बॉडी है वो डेवलप होती है. शी इज द वन हु इज गोइंग टू गिव बर्थ इन द कमिंग ईयर्स. जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको बच्चा देना होता है, तो उसकी देखभाल करनी भी जरूरी होती है. शी नीड्स कैल्शियम, शी नीड्स आयरन, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये चीजें गर्ल्स को नहीं मिलती है. तो नेचुरल है कि व्हेन अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट शी इज वेरी वीक, और कई बार उसकी डेथ हो जाती है या फिर बच्चे की डेथ हो जाती है. सेकेंडली हमारे यहाँ पर क्या है, अर्ली मैरिज. हमारे यहाँ 18 साल होने के बाद ही लोगों के घर में घंटी बजनी शुरू हो जाती, बेटी हुई है तो शादी कर दो, शादी कर दो, शादी. भाई शादी is a very important decision of your life. A person should be healthy, a person should be wealthy. It's not like age. There is no age for marriage. There is a proper criteria for marriage. लेकिन हमारे यहाँ पहले था बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए. गर्ल्स के लिए तो कोई एज नहीं था, बॉयज के लिए 18 साल था. बट नाउ फॉर बॉयज इट इज 21 years एंड फॉर गर्ल्स इट इज 18 years. क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता कि गर्ल्स की शादी जल्दी कर देनी चाहिए. दिस हैज बीन डन सो दैट जो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं दे आर एबल टू, उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाए, वो लोग मेंटली स्ट्रांग हो जाए. इट इज नॉट ओनली फिजिकली, दे नीड टू बी मेंटली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए. सो अब जो है इट हैज बीन आपके एनपीपी में क्या है, पहला है कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 years. इसके लिए गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी स्कीम्स लाइक सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्टार्ट किया है. देन रिडक्शन ऑफ infant mortality rate
और इसको कैसे किया गया, मतलब कि इसको कैसे किया है, बाय प्रोवाइडिंग वैक्सीनेशन टू मदर एज वेल एज टू द चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनको और मदर को दोनों की देखभाल करना. देन अचीविंग इम्यूनाइजेशन, उसके लिए वेरियस प्रोग्राम्स आपके किए जाते हैं. यूनिवर्सल, जैसे आपका पल्स पोलियो, दैट इज अ वन, हमारे यहाँ ये हुआ था, कोविड के लिए हुआ था. एंड देन promoting delayed marriage especially for the girls. उससे क्या होगा, if the girls are marrying late, थोड़ा लेट होता है, तो then उनको जो है their body will be strong. There should be gap between two children. अगला बच्चा होता है तो मदर की जो हालत है वो खराब हो जाती है, मदर की बॉडी में जो कैल्शियम है वो खत्म हो जाता है. देन मे बी द मदर बिकम सिक आफ्टर 40 और 45 years, शी इज ऑन द बेड, शी इज हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस. तो इसीलिए उनका प्रमोशन करना. देन व्हाई एनपीपी एंड एडोलेसेंस, दिस इज बिकॉज जो एडोलेसेंट्स होते हैं, they are the future torch bearers. आप लोग जो हो, you are the torch bearers. You are the one who is going to make the decision for your country. And अगर adolescent population हमारा healthy, literate, then अगर मतलब कि if it is well informed, तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में हमारा जो population होगा, that would be very very informative. अगर आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग हेल्दी हो, आप लोगों को पता है व्हेन टू मैरी, हाउ टू मैरी, व्हाट शुड बी द, मतलब कि बच्चा कैसे, उसकी बच्चा जब पेट में है तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए. इफ यू आर वेल इन्फॉर्म तो हमारा देश आगे बढ़ेगा. सो दिस इज द एंटायर चैप्टर व्हाट वी कॉल एज पॉपुलेशन एज अ पार्ट ऑफ योर रिविजन. In the chapter today we have read that what is population, the total number of persons living in any area, किसी भी एरिया के अंदर. अ पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सिटी, इट कैन बी फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, इट कैन बी फॉर अ कंट्री. लेकिन हम ऑन द ओवरऑल हम पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री को काउंट करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन इज द ह्यूमन रिसोर्स. आपके पास बड़ी सी मतलब की अलमारी है, लेकिन अगर लोगों के पास दिमाग नहीं है तो उस अलमारी के अंदर आप क्या रखोगे ये कोई नहीं बता सकता. हम लोगों ने पालमपुर में पढ़ा था दैट देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो उसके अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल कैपिटल एंड देन वी हैड आल्सो सेड ह्यूमन कैपिटल. अगर आपके पास जमीन है, से यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक जमीन रखी है, लेकिन उस जमीन का क्या, वो जमीन अपने आप तो सोना नहीं उगाएगा ना, उस जमीन को प्रोडक्टिव बनाता है इंसान. तो दैट इज व्हाई द पॉपुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड. देन हमने पढ़ा पॉपुलेशन को हम कैसे काउंट करते हैं. फॉर दैट वी स्टडीड दैट काउंटिंग इज डन बाय एन ऑफिशियल इम्यूनरेशन व्हिच इज कॉल्ड एज सेंसस. एंड इन इंडिया द सेंसस स्टार्टेड अर्लियर, लेकिन उसको खत्म होने में 10 साल लगे थे. उस वक्त में वी वर नॉट हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ फॉर्मेलिटीज. एंड तब से अब तक, काइंडली ये वाला क्वेश्चन याद रखना, तब से अब तक एवरी 10 years सेंसस इज डन. एवरी 10 years में हम सेंसस काउंट करते हैं. अब सेंसस कैसा होता है आपको पता है, सेंसस कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा पेज शीट होता है, इतना बड़ा शीट. उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपके मतलब कि अगर आपके घर में सोचिए 4 जने हैं तो मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, देन सबकी एज, उनका जेंडर, उनकी मतलब की लिटरेसी रेट, उनका घर के अंदर क्या क्या सामान है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगलो है, टीवी है, फ्रिज है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. व्हाई? दिस इज टू सी कि एक एरिया में अगर कितने लोग रहते हैं, तो वेदर दे आर एजुकेटेड, वेदर दे आर हैविंग मनी, वेदर दे आर इकोनॉमिकली स्टेबल, ये सब करते हैं. और 10 साल में एक बार जो है सेंसस इज डन. देन हमने पढ़ा दैट हाँ सेंसस जो है वो किस चीज को, मतलब कि व्हाट इज द थिंग दैट सेंसस टेक्स इनटू कंसिडरेशन. तो हमने पढ़ा व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ. सेकेंड इज पॉपुलेशन ग्रोथ को वो पढ़ता है
देन पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन added or how many people have been deducted. Then what is the size? And third, it is the quality. तो पॉपुलेशन साइज में आ जाता है आपका करंट पॉपुलेशन कितना है. देन ग्रोथ में आता है बर्थ रेट एंड डेथ रेट. उसमें हम देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लेते हैं एक. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है एक साल में एक जगह में पहले कितने लोग रहते थे, अब कितने रहते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं. लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट में हम इसी जो हमने डिडक्ट किया है उसको हम एज अ परसेंटेज निकालते हैं. 40% ऑफ 100 इज इक्वल टू 40%. तो वो हम निकालते हैं. पर 100 कितने लोग ऐड हो गए उसको हम निकालते हैं. जैसे मैंने 1000 एंड 1500 का दिखाया था, तो मतलब कि 500 पर 1000 यानी कि 50% लोग इंक्रीज हो गए. पहले 1000 थे, अब 1500 हो गए, यानी कि 50% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया. तो उसको हम एनुअल ग्रेट निकालते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन अवर कंट्री. देन थर्ड हमारा आता है मतलब कि इसी के अंदर आता है माइग्रेशन. अगर किसी कंट्री के अंदर लोग बाहर जाते हैं तो कंट्री का पॉपुलेशन कम हो जाता है, बाहर से आते हैं तो ज्यादा होता है. इंटरनल माइग्रेशन मतलब विद इन इंडिया, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, उसमें पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं होती है, ओनली योर नेम इज एनरोल्ड हियर एंड इट इज देयर. देन हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. एंड क्वालिटी का मतलब है व्हाट, मतलब कि व्हाट इज द एज कॉम्पोजिशन, मतलब मैक्सिमम किस एज के लोग रहते हैं, कितने वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट, व्हाट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ दैट, मतलब कि वहां के उन लोगों का क्या हेल्थ स्टेटस है, एंड देन वेयर डू दे वर्क. तो एज कॉम्पोजिशन हमने किया, 15 इयर्स एंड अबव को हम वर्किंग मानते हैं, उनसे पहले छोटे को बच्चे, एंड 59 अबव को हम लोग एजड या अडल्ट पॉपुलेशन में लेकर आते हैं. देन हमने पढ़ा लिटरेसी के लिए हमने पढ़ा लिटरेसी रेट. देन जेंडर में बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज, जैसे केरला के अंदर आपके 100% लिटरेसी भी है एंड 100% वहां हेल्थ भी है, और 100% वहां बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं है. वेयर इज इफ यू कम टू बिहार, वहां पर अगर आप देखोगे तो हेल्थ स्टेटस बहुत कम है, जेंडर डिस्पैरिटी है. इवन इन हरियाणा और दिल्ली ऑल्सो आपकी बॉयज टू गर्ल्स में जेंडर डिस्पैरिटी है. देन हम लोगों ने पढ़ा हेल्थ के अंदर हम लोगों ने बर्थ रेट डेथ रेट के साथ वी ऑल्सो स्टडीड IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि दैट शोज द काइंड ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल इन अ कंट्री. मतलब आपके यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं, ये आपका बताता है. देन नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा मतलब कि लिटरेसी हम लोग, देन वेयर डू पीपल वर्क, whether they are working in प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, सेकेंडरी यानी कि फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन, और टेरिशरी यानी कि बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, टीचर्स, लॉयर्स. तो अगर हम देखते हैं तो टेरिशरी इज मोर मनी मेकिंग, मतलब उसमें पैसा ज्यादा है. लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो है 60% पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर, उससे हमारा ओवरऑल GDP कम हो जाता है. तो इस तरीके से बेटा हर एक छोटी सी चीज को लेकर हम लोग अपने पॉपुलेशन के क्वालिटी को पढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इन ज्योग्राफी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट in India we also have formulated the national population policy so that हम बच्चों को जो है, लोगों को जो है समझा सके about the benefit of एजुकेशन, जिसके अंदर आपका सर्व शिक्षा अभियान, कंपल्सरी एजुकेशन टिल 14 इयर्स आ जाता है, टू मेक देम अवेयर अबाउट हेल्थ. हेल्थ के लिए हम उनको जो है, द गवर्नमेंट इज गिविंग देम द बूस्टर डोजेस, द गवर्नमेंट इज गिविंग फ्री वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. देन जगह जगह पर जाकर विमेन की हेल्थ को जो है कंसर्न किया जाता है. एंड इस पॉलिसी के अंदर वी नॉर्मली क्या मतलब कि वी इन्वॉल्व द एडोलेसेंट बिकॉज दे आर द फ्यूचर मेकर्स. उनको इन सब चीजों की जो है बेनिफिट्स बताए जाते हैं अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, डिलेड मैरिज, एंड हाउ दे हैव टू लिव अ सेफ लाइफ.
So that is the chapter population.